Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, बात करते हैं शेयर बाजारों की। और आज की बातचीत तो बेहद रोचक होने वाली है, क्योंकि हमारे शेयर बाजार भी गिरे हैं। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में, ये हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। पहले हम नंबर बता दें, फिर आज के एक्सपर्ट से आपका परिचय कराते हैं। नंबर हैं 2331 44 44, 23 42 10 50, 23 310 464, तीनों नंबर दिल्ली के। 011 एसटीडी कोड के साथ नंबर डायल करें। और हाँ, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हर सप्ताह की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद शरद कोहली। बहुत बहुत स्वागत शरद जी आपका। वार्म वेलकम शरद। धन्यवाद हर्ष, थैंक यू सो मच राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। So quickly begin today's edition of Market Mantra with the headlines in English. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming the new factory of the world by transforming itself from a workforce to a world force. Domestic markets declined for the third straight week. Both Sensex and Nifty dropped nearly 3%. And GST collections jumped 9.1% to 1.84 lakh crore rupees in February this year. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व की नई फैक्ट्री बन रहा है, जहां वर्क फोर्स को वर्ल्ड फोर्स में बदला जा रहा है। इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में लगभग 3% की भारी गिरावट। सेंसेक्स 73,198 तो निफ्टी 22,125 पर पहुंचा। और फरवरी महीने में जीएसटी संग्रह में 9.1% की भारी बढ़ोतरी, 1,84,000 करोड़ रुपए पहुंचा। Prime Minister Narendra Modi has said that the world is keenly looking towards the 21st century India. Addressing the next conclave 2025 at Bharat Mandapam in New Delhi today, Mr. Modi said that people from across the world want to come to India to know this country. He said, "Today India is a country where positive news is constantly being created, and news is not being manufactured, as new things are happening every day." The Prime Minister said that he had put forth the vision of vocal for local and local for global to the nation, and today this vision is turning into a reality. He said now the Ayush products and yoga have become global from local. He added that for decades the world referred to India as their back office, but now India is becoming the new factory of the world, and it is no longer just a workforce, but instead becoming a world force. He mentioned that the goods the country used to import them previously are now being produced locally, and the country is emerging as an export hub for those products. He said farmers, once limited to local markets, are now seeing their crops reach global markets. The Prime Minister credited the mantra of minimum government, maximum governance for achieving the set. योगेश दिल्ली से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत योगेश जी। आज के पहले कॉलर, अपने सवाल को पूछ लें प्लीज। जी नमस्कार। मार्केट में तो ताबड़तोड़ गिरावट जारी है, इस पे तो बहुत लोग सवाल पूछेंगे। मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है कि भारत में अगर हम ज्यादातर रिटेल निवेशकों को मिडिल क्लास मानते हैं
और गरीबी रेखा का एक अपना पैमाना है जो गरीबों के लिए है। तो मिडिल क्लास के लिए क्या पैमाना है? क्या नेटवर्थ के हिसाब से या पर हेड रनिंग इनकम के हिसाब से किस आधार पर तय किया जाए कि हम मिडिल क्लास में आते हैं, और इसके लिए कितना पोर्टफोलियो साइज है, कितनी नेटवर्थ एक बेसलाइन लेके चला जाए? योगेश, ऐसा कोई फिक्स्ड पैमाना तो इसका नहीं है। आपका सवाल बहुत जेन्युइन है, क्योंकि वाकई में इसमें बहुत सा ग्रे एरिया मेरा मतलब है कि कहाँ से मिडिल क्लास शुरू होती है, क्योंकि 25 करोड़ लोग जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से निकल कर आए, अब तो 25 से भी ज़्यादा है उनका आंकड़ा, तो वो एक तरह से अब जब पॉवर्टी इंडेक्स से निकलते हैं तो आप लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं। तो कोई ऐसा पैमाना नहीं है। पहले ये था कि 5-6 लाख, फिर 8 लाख। मुझे लगता है कि अगर हम आयकर की दृष्टि से देखें या नेटवर्थ पोर्टफोलियो तो नहीं कहा जा सकता, हम इनकम क्राइटेरिया ले सकते हैं। अभी कुछ ऐसा नेटवर्थ का क्राइटेरिया पैमाना तय नहीं हुआ है, पर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मुझे लगता है आजकल करीब 8 लाख और 15 लाख के बीच में, बल्कि 20 लाख, 8 लाख और 15 लाख के बीच में, अगर आप शहर में हैं तो 20 लाख तक, शहर में नहीं है, टियर 2 टियर 3 सिटी में है तो 8 लाख 15 लाख के बीच में अगर आप है तो मिडिल क्लास। और आपको मैं ये बता दूं कि मिडिल क्लास की जो परिभाषा है वैसे तो वो शुरू हो जाती है 3, 4, 5 लाख के बाद ही शुरू हो जाती है। मेरा अनुमान है कि मिडिल क्लास हमारी एक निजी संस्था ने एस्टिमेट किया था कि 40-41 करोड़ की है, पर मेरा अनुमान कहता है कि अगर हम उन लोगों को भी ले लें जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से निकले हैं तो वो भी लोअर मिडिल क्लास में जाएंगे। मेरा अनुमान है कि करीब 65-70 करोड़ की हमारी मिडिल क्लास इस समय हो चुकी है, पर कोई इसका एक बहुत स्थायी पैमाना अभी तक ऐसा नेटवर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से योगेश नहीं है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। आपका डाउट जो है वो बिल्कुल सही जगह से आ रहा है। इनकम का मैंने आपको जिक्र कर ही दिया। Joining us from Delhi is Upendra. A warm welcome, Upendra. नमस्कार सर, उपेंद्र गुप्ता, वसंतपुर, दिल्ली से। जी सर, मेरा एक सवाल ये है कि निफ्टी पिछले 26 साल में रिपीट कर रहा है कि पिछले 5 महीने कंटिन्यूस नीचे बंद हुआ है। इसी तरह से सेंसेक्स भी पिछले 28 साल में 6 महीने कंटिन्यूस नीचे बंद हुआ है। तो इस बात को, इस डाटा को मार्केट के संदर्भ में किस तरह समझना चाहिए? उपेंद्र, देखिए, ये बात सच है कि पिछले 25 साल से ज़्यादा का ये एक तरह से रिकॉर्ड टूट रहा है। पर अगर आप, जो लोग मार्केट का और तजुर्बा रखते हैं, मैं निजी तौर पे, मुझे मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए करीब 35 साल हो चले हैं। आप सच पूछे, मेरे से निजी तौर पर पूछे तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। सिर्फ ये है, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि नॉर्मली बुल रन्स लंबी चलती हैं, बियर रन्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखेंगे। पर ऐसा नहीं है कि बियर रन बीच में आई नहीं। 2008 का मौका था, 2000 में भी मौका था, बीच में भी समय समय पर हमने देखा। ये ठीक है कि कोविड के बाद से, जब निफ्टी 7,500 पे था, मुझे याद है, उसके बाद से 26,277 का जो सफर है वो लगभग एक तरफा रहा। बीच बीच में थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट्स आती रही, पर लगभग एक तरफा रहा। और ज्यादातर निवेशक ने आज तक मंदी देखी नहीं थी कि मंदी कैसी होती। अब हम जब 12-15% करेक्शन के मुकाम पर खड़े हैं तो रिटेल निवेशक बक्का बक्का होकर खड़ा है कि ये मार्केट को क्या हो गया है, और उनको तो ऐसे अफसोस करें, पर मार्केट का स्वभाव ही ऐसा है। अब ये अक्टूबर से हमने देखा, और 91 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय उड़ चुकी है। अगर मैं सितंबर से अब तक का लूं तो कितने दिन तक ये चलती है? मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीने शायद टफ रहे, क्योंकि वैश्विक स्तर पर थोड़ी सी अनिश्चितता फैली हुई है, खासकर ट्रेड पॉलिसीज को लेके, ट्रेड टेंशंस को लेके, डॉलर को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जियोपॉलिटिकल भी अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। कल ट्रंप साहब और ज़ेलेंस्की साहब की जो मीटिंग हुई, जिसका काफ़ी चर्चा में है। तो मुझे लगता है कि ये जो अनिश्चितता का माहौल है, जैसे ही ये आपको क्लियर होता दिखेगा तो मार्केट टर्न अराउंड होगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे ही चलती चली जाएगी। अब ये कब होगी? देखिए, हम स्टॉक मार्केट में हम एक नियम फॉलो करते हैं, मार्केट को कभी प्रिडिक्ट नहीं करते। तो पीछे आप हिस्ट्री उठा के देखें तो इतना ये मार्केट के लिए बहुत साधारण है। प्रॉफिट बुकिंग और हमारी वैल्यूएशंस पर भी सवाल उठ रहा था, कुछ चाइना फैक्टर भी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं ये थोड़ी बात खोल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल इस पर आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी श्रोता जुड़ गए होंगे तो वो एक बार सुन ले, बजाय इसके कि अलग अलग लोग अलग अलग उससे पूछें। तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। लोग तो इसमें खरीदारी के मौके
काफ़ी ढूंढ रहे हैं। और अगर आप हमारे DIIs को देखें राजेश और हर्ष, तो DIIs तो लगातार इसमें बाइंग कर रहे हैं। वॉरेन बुफे साहब का रूल था कि गिरती हुई मार्केट में खरीदिए, चढ़ते हुए। लोग तो जनरली उल्टा करते हैं, तो लोग इसमें अच्छे वैल्यूएशंस लार्ज कैप में ढूंढ रहे हैं जो अपने पोर्टफोलियो में बनाए। तो कोई बहुत आपकी आवाज़ से लग रहा था उपेंद्र कि आप थोड़े से चिंता में हैं और फिक्र में हैं, तो आप हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं, देखें कब तक हुई, कब हुई, कितने दिन चली। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जो चीज़ नीचे जाती है वो ऊपर आती है, जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। मार्केट का ये स्वभाव है। NR Prasad from Bengaluru joins us now. A warm welcome, Mr. Prasad. Hi, good evening, Market Mantra. This is NR Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh. Hello, Harsh. Sharad ji, good evening to you. And there are two questions. Good evening. One is on the ITR. See, when I filed this ITR for the year 2024-25, Yeah. okay, and now what I would like to get a clarification from you is that, see, last year when I filed, I went into the old scheme where capital gains was a part of my total earnings. Yeah. Now that 7 lakhs is increased to 12 lakhs. Yeah. Would this 7 lakhs total this thing will be include this thing capital gains as it would become old when I file in 2026 July? My second question is generally on the market I was listening to you very clearly and patiently about the description which you are giving about the market fall. See, generally this happens once in 12-14 years. In fact, in COVID, I bought more and I booked the profit in 22 and 23. Okay. Now, is this the right time to invest? Assuming that I will wait for some 3 months maximum, maybe May, June. Thank you. These are my two questions. Okay, Mr. Prasad, let me answer your first question first. The 12 lakhs or 7 lakhs as per the old provisions, 12 lakhs as per the new provisions of income tax recently introduced in the budget, which is going to be effective from 1st of April 2025. Let me tell you that this is called Section 87A rebate, and long-term capital gains do not form part of that rebate. So, therefore, please note that carefully that that 12 lakhs limit, the 87A limit, shall I call it, instead of calling it 12 lakhs. So, long-term capital gain, because long-term capital gains are taxed at special rate of 12.5%. So, any income which is taxed at special rate is not covered under Section 87A. Your second question was about about the market that. There is no fixed pattern, first of all, 12 to 14 years. There is no standard pattern. This can happen again. This may not happen for as much time. So I think the right strategy is, if you have profits, although your profits must have lessened, if you're still holding shares, then you can probably book profits, exit and re-enter. And the best way to make a strategy in this market is to buy in smaller lots and buy by way of a system of SIP. When I say SIP, I need not necessarily mean the mutual funds. I mean systematically, every week, every fortnight, every month, every time the market corrects, goes down, pick up something which is at attractive valuation. Be a hunter. If you want to enter the market, this is a good time to enter the market. Although somebody can question me and say, what if the market goes down further? And it may, you never know. But, buying at different lower levels will get you very attractive bargains. And as you said rightly, when market fell in COVID, you bought when the market was falling. And look at the kind of profit you would have made. So I think that is the strategy that intelligent and strategic buyers who are long-term investors, they always look, in fact, they wait for the markets to fall. But, unfortunately, most people, what they do is they want to, climb when the horse is up on the hills. So when you climb, the horse can easily start panting soon, so therefore, you might turn back. So therefore, the strategy you're following, Mr. Prasad, is good, and I'm sure you must have made profit. I mean, I don't mind recommending you to repeat that strategy at this point of time. Yes. प्रेम पुजारी फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं. बहुत बहुत स्वागत प्रेम जी आपका. धन्यवाद जी. आप सवाल पूछने. नमस्कार. नमस्कार जी. सर कोहली जी, मैंने आपका हेयर स्टाइल देखा, बहुत बढ़िया है. वो आप लॉन्ग लंबे रेस के घोड़े हैं, तो इसलिए प्रेम जी बाकी कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं. आप जल्दी से सीधे सवाल पर जी.
नहीं, ये तो हम समझते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे इतना शेयर मार्केट में लुढ़क गई मार्केट, ऐसा क्यों नहीं होता? ये सोना 80 से ऊपर ही चल रहा है, ये क्यों नहीं आधे पे आ गया? इसके बारे में क्या कुछ फंडा बताएंगे, समझाएंगे? जी जी। मैं हर्ष प्रेम जी का रेडियो सेट देखना चाहता हूं जिसमें हमारी शक्लें भी दिखती हैं, क्योंकि मुझे तो आज तक ऐसा रेडियो सेट मिला नहीं जिसमें हमारी शक्ल दिखाई देती है। प्रेम पुजारी जी का सवाल है, देखिए सोना एक हेज एसेट होता है। हेज एसेट का मतलब है प्रेम पुजारी जी कि जब दुनिया मुश्किल में होती है, जियोपॉलिटिकल सिस्टम मुश्किल में होता है, अनिश्चितता का माहौल होता है, अभी टैरिफ्स की वजह से अनिश्चितता हो रही है, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोने की खरीद कर रहे हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड शायद वापस भविष्य में आ सकता है। तो जब वैश्विक अशांति या वैश्विक अस्थिरता या वैश्विक अनिश्चितता फैलती है प्रेम पुजारी जी, तो उस समय सोना चढ़ता है। तो ये आपके सवाल का सीधा जवाब है कि सोना 80 से ऊपर बना हुआ है, और हम तो रेकमेंड करते हैं आजकल के आपके टोटल पोर्टफोलियो में 15-20% सोना भी होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अपने सवाल का पूरा उत्तर मिल गया होगा। जब तक ये अनिश्चितता बनी रहेगी, सोने में मजबूती आपको देखने को मिल सकती है। From Gurgaon, we are joined in by Bharat Narula. Bharat ji. Yeah, good evening. I'm a senior citizen, and actually I'm thinking of shifting my debt fund, short-term debt fund, to a small saving fund, senior citizen saving scheme, where the interest rates are higher. Now, I want to know what are the chances that this 8.2% which I'm getting from senior citizen saving scheme, what are the chances that because the repo rate has been reduced, what are the chances that this will also get reduced, small saving post office government scheme? Number one. Number two, whatever funds I have in mutual funds, is this, if I redeem these funds, does this get added on to my income, and am I taxed as per the slab rates, or am I taxed as per the long-term capital gains? Yes, Mr. Narula, your first question, what are the chances of the senior citizen scheme interest rates going down? Well, you're right. Your apprehension is correct, first of all, that if the repo rates start falling, then obviously it does impact these fixed income, fixed return schemes also. But I have a feeling because the government has introduced senior citizen scheme with a very specific motive in mind to support the retired people, to support senior citizens. So this will be the last in the queue where the interest rates would be reduced. Even if they get reduced, probably 0.1, 20 basis point, 10 basis points. So I think for now, Mr. Narula, you can safely remain in that. I don't see a major correction in that immediately because the Monetary Policy Committee meeting, we are expecting 25 to 50 basis point. Maybe a correction of 10-20 basis point, which I may not affect unless you have a very, very large portfolio. The second question was relating to debt funds. Yes, debt funds now, as per the changed tax rules, they are not treated as capital gains. They get straight away into your income slabs. As you know, the change on debt funds has been done. So I know where your question is emanating from. Probably you have your doubt. Yes, your doubt is correct. They are no more part of capital gain. They are taxed at the normal slab rates which you have on which you apply. Yeah. जितेंद्र जयपुर से हैं। जितेंद्र जी, स्वागत आपका। क्या सवाल है? हाँ सर, जैसे अभी मार्केट काफी 3-4 महीना से डाउन जैसे चल रहा था, तो मैंने म्यूचुअल फंड में SIP शुरू किया था मल्टी कैप में, ठीक है। और स्टॉक में मैंने कभी स्टॉक में मतलब आप हमको कोई सेक्टर बताया जिससे SIP चालू करें, 1-2 सेक्टर। जितेंद्र जी, SIP को लेके बहुत सवाल राजेश और हर्ष आ रहे हैं, और SIP को लेके बहुत लोग परेशान हैं। उनको लगता है हमारे खून पसीने की कमाई है, पर वो ये भूल गए कि ये पैसा इक्विटी SIP में अब डाल रहे हैं तो इक्विटी में जा रहा है, और इक्विटी मार्केट जैसा बिहेव करेगी, अगर वो आपको 20%, 25%, 30%, 50% कहीं इससे भी ज्यादा रिटर्न दे रही थी, तो अगर मार्केट नीचे आएगी तो कुछ ना कुछ तो प्रभावित होगा। तो मैं समझता हूं आप जितेंद्र अच्छे SIP, वैसे तो अगर आप SIP फंड पूछना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप संडे को जो म्यूचुअल फंड पे डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है वहां पर कल वो होता है, आप उसमें कॉल करें। पर ऐसा कोई पोर्टफोलियो, ऐसा कोई सेक्टर हो जो, अगर आप सेक्टर मेरे से पूछते हैं, मैं डिफेंस पे बहुत बुलिश हूं, मैं FMCG पे बहुत बुलिश हूं, मैं रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत बुलिश हूं, और ये 2-3 सेक्टर्स आप इसको दिमाग में रखें। मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला ऑटोमोबाइल में आप उस पर ध्यान में रखें, जो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस कर रही हैं, बैटरीज पे फोकस कर रही हैं। ये 3-4 सेक्टर्स हैं तो जिन फंड्स का पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो इनमें आता है उसको आप कवर करें, और अगर आप स्पेसिफिक फंड पूछना चाहते हैं तो आप कल कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। अतानु शाह के पास जाने से पहले हम ये बता दें कि इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में लगभग 3% की जबरदस्त गिरावट रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पूरे सप्ताह के दौरान 2113 अंक गिरा, 73,198 पर बंद हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 671 अंक गिरा, जो कि 2.9% होता है, 22,125 पर आ गया। बीएसई मिड कैप में लगभग 4.5% और स्मॉल कैप में तो 6% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। और इसी पर आज के सारे सवाल आ रहे हैं, जिसका जवाब बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से और धैर्य रखने की हिदायत के साथ शरद कोहली जी दे रहे हैं। चलना पड़ेगा अगले कॉलर के पास, अतनु शाह। अतनु जी, बहुत बहुत स्वागत, जल्दी से सवाल पूछ लें। Good evening, sir. I'm going to first. My question is, sir, in this situation, why our DII purchasing randomly? Why they are purchasing? It's a good sign. Is it a good sign for our country? And another my question is, sir, the government revenue receipts in near future, what would be? What would be with the percentage with expenditure? Thank you very much. Mr. Saha, why are DII buying randomly? No, I would beg to differ here, because they don't buy randomly. You should know that DIIs are domestic institutional investors. A lot of them are AMCs, the asset management companies who collect your mutual fund collection has been over 40,000 crores a month. SIP has been about 24,000 crores a month. They have experts, they have financial analysts, they've got wealth managers, wealth experts. They analyze, they've got equity analysts. So they have a team. And I think they don't buy random, they look at the prospects of the company, about the sector. They do a very detailed analysis. So it is not, first of all, random buying. And I think it is a very commonly known strategy that when the market falls, as we keep saying as well, you should look for bargain hunts, because this is the time when you're getting the stocks cheaper. Unless if you buy higher, then obviously your profit is limited. If you buy at a lower level, obviously you tend to earn more. Your second question is about government earnings. Government earnings are very healthy. In fact, in today's news clip, 1,84,000 crore of GST collection, which is the data which has come. I think we government have that as a story. Exactly. So revenue receipts are quite healthy at this point of time. Government, we have a fiscal deficit. I'll tell you the deficit, because instead of knowing how much is the government expenditure, how much is the revenue, fiscal deficit about 4.7, 4.8%. Our target is to bring it down below 4.5%. I hope that data should be sufficient. The numbers they come at the time of budget. These numbers are not announced every now and then. Some of the numbers may be in public domain, but I think it's more important for a citizen to know as to what is the fiscal deficit looking like for the people who've got interest in macroeconomics. From Kolhapur, we are joined in by Ratnakar. A warm welcome. हेलो जी, सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि जो नॉमिनेशन रहता है वो म्यूचुअल फंड के लिए भी नॉमिनेशन रहता है और बैंक में भी नॉमिनेशन रहता है जी। तो नॉमिनेशन करना सही रहेगा क्या? क्योंकि खाते पर, नाम पर अपना खाता रहना और नॉमिनेशन, उसमें फर्क है। समझो कोई इंसिडेंट होता है तो खाली नॉमिनेशन रहेगा तो उसको सभी पैसा मिल सकता है क्या? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि जो इनकम टैक्स पेयर्स है जी, इनकम टैक्स जो देते हैं जी, आजकल उनका ऐसा ये होता है कि हमें तो कुछ नहीं मिलता है, हम क्यों इनकम टैक्स देंगे? हमारे इनकम टैक्स से वो जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज देती है वो स्लम एरिया वालों को मिलता है। तो ऐसे हालत में हम उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि इनकम टैक्स देना उचित रहेगा? आप उनको फ्री नहीं कुछ मिलता है इसलिए। नॉमिनेशन, रत्नाकर जी, आपके दोनों सवाल आज आपने बहुत आसान सवाल पूछे हैं। आप नॉर्मली बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं, आज आपने बहुत। नॉमिनेशन तो रत्नाकर साहब मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी नहीं भी होता। आप नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, पर करना चाहिए। मेरा मैंडेटरी कहने से मतलब है कि आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि कल को अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसको पैसा मिल जाता है। क्योंकि किसी के जाने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके पीछे कोई झगड़ा ना खड़ा हो जाए, मल्टीपल क्लेमेंट्स ना आ जाए, तो नॉमिनेशन चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे बैंक अकाउंट हो, वहां पर जरूर करना चाहिए। मैं सभी श्रोताओं को ये हिदायत दूंगा। दूसरा आपने पूछा इनकम टैक्स देने वाले पूछते हैं हमें बदले में क्या मिलता है, खाली स्लम वालों को मिलता है। मैं थोड़ा सा इस बात से डिफर करूंगा, क्योंकि आप
आप जो सड़कें इस्तेमाल करते हैं, आप जो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं, आप जितनी भी सरकारी सुविधाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूँ हम लोग सब मिलकर टैक्स देते हैं, उसी से देश चलता है, सरकारी पूरा तंत्र चलता है, पूरी अर्थव्यवस्था काम करती है। कभी कभी जो हमारा निम्न वर्ग है, जो हमारा गरीब वर्ग है, उसके लिए एक स्पेशल स्कीम्स अनाउंस की जाती हैं, ये सच है, पर जो हमारा समृद्ध वर्ग है उनके लिए तो बहुत सारी और जो सिविक्स फैसिलिटी आप यूज करते हैं वो उसमें आ जाता है। वो ये बात शिकायत टैक्स पेयर्स की हमेशा बनी रहती है और इसका जवाब भी बना रहता है। आपकी शिकायत अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, कुछ टैक्स पेयर संतुष्ट नहीं होते कि हमें टैक्स इतना देते हैं बदले में। अब ये तो है नहीं कि 1 रुपया दो, 1 रुपए की सुविधा लो, ऐसा कुछ पैमाना रत्नाकर जी नहीं होता है। जी, शंकर फ्रॉम भोपाल इज विद अस। शंकर जी, सवाल पूछ लें। नमस्ते कोहली जी, मेरा सवाल है ये यूएस का जो और इंडिया की जो ट्रेड डिफिसिट है 45-46 बिलियन डॉलर की, विच इज इन फेवर ऑफ इंडिया जी, तो हाउ ट्रम्प साहब कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें कुछ ड्यूटी कम करें, लेकिन हम तो उनसे ये सब चीजें खरीद के यहाँ पे इतना बिकना नहीं है, ना टेस्ला की गाड़ियां बिकनी इतनी ज्यादा, बिकॉज $40,000 की गाड़ी यहाँ बिकेगी कहाँ इतनी महंगी, यहाँ तो लोग इतना लेते नहीं है गाड़ियां। बोरबोन इसकी भी हम लोग कम ड्यूटी कम भी करते, तो ये ट्रेड डिफिसिट कैसे कम की जा सकती है, हम उनसे क्या ले सकते हैं जिससे ट्रेड डिफिसिट कम। और दूसरा सवाल सर, पी वैल्यूएशन कब अच्छे होंगे जिससे फॉरेन इन्वेस्टर आ जाए। शंकर जी, पहला सवाल आपका, इसको हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं कि हम भारतीय हैं तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें कि ट्रेड सरप्लस है, ना कि ट्रेड डेफिसिट, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब कैसे होगा ये, वो क्या चीजें ऐसी भेजेंगे। वैसे जो जिन गाड़ियों का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है वो पहली गाड़ी जो निकालेंगे वो 21-22 लाख 25 लाख की रेंज की होगी, इतनी महंगी गाड़ी नहीं होगी जो कि भारतीय बाजारों में फिट हो सके, दूसरी गाड़ियों को कॉम्पिटिशन दे सके। और बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कॉमर्स मंत्रालय इस पे काम कर रहा है कि कैसे इन टैरिफ्स को अलाइन किया जाए एक दूसरे के साथ, जो ट्रम्प साहब चाहते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच में व्यापार और आगे फल फूल सके। $500 बिलियन का टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री जी जब अभी गए थे ट्रम्प साहब के पास, तो ट्रम्प साहब ने बोला कि हम 500 बिलियन तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। बहुत सारा सामान है जो वहां से आ सकता है भारत के इस्तेमाल के लिए, और अगर वो रीजनेबल प्राइस पे आता है तो हम क्यों नहीं उसको लेना चाहेंगे। जी, Amrish from Mumbai, please stay with us as we tell you that India's gross goods and services tax GST collections jumped 9.1% in February to 1.84 lakh crore rupees in comparison to same month last year. February marks the 12th consecutive month of over 1.7 lakh crore rupees of collections. As per the data, mop-up from central GST stood at 35,204 crore rupees, state GST at 43,704 crore rupees, integrated GST at 90,870 crore rupees, and compensation cess of 13,868 crore rupees. Total refunds issued during February were 20,889 crore rupees. Net GST collections after discounting the refunds for February rose 8.1% to about 1.63 lakh crore rupees. Amresh from Mumbai, please quickly ask your question. Sir, good evening, Mr. Sharad Kohli and Market Mantra team. Good evening, Amresh. My question is, I am holding good number of famous auto component manufacturing companies, but it was referred to NCLT. Now it is delisted from NSE BSE. Now how to sell my shares? This is my question. Mr. Amrish, first of all, we are very sorry to know, because every time somebody mentions about the loss suffered in financial markets, stock market, it's not very pleasing to be listening to that. You know, as a market analyst, I don't really enjoy that. So I'm very sorry. First of all, I think since the matter is with NCLT, Mr. Amrish, so I think NCLT provides a liquidation scheme. So there is a professional called IRP, Insolvency Resolution Professional, who's appointed. So he makes a list of assets, and those assets are then allocated amongst priority creditors. You know, there are lenders, or there are other vendors who have to collect pay, and then of course shareholders, being equity, part of equity, they come in the end. So you will have to follow that NCLT proceedings,
and see what is the final decision of NCLT, and then you will know under what scheme the liquidation is going to happen. We hope, wish and pray that you are able to recover your hard-earned money to whatever extent. बिल्कुल आज के लिए for next week briefly. Well, I think in Hindi, if you allow me, Rajesh, I'll say बहुत कठिन है डगर पनघट की. तो लेकिन ऐसे में धैर्य बरतते हुए चलना चाहिए. पैसों की जरूरत नहीं है. तो जो इन्वेस्टेड हैं उन्हें अभी धैर्यपूर्वक इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए. बिल्कुल. और मुझे लगता है वो टेरिफाई कहते हैं हिंदी में उसको बोलते हैं डरने डराने को. तो टैरिफाइड मैंने एक शब्द निकाला था कि टैरिफ शब्द इतना कम होगा. अभी तो कभी वर्ल्ड वॉर 3 का भी कल जिक्र हो गया प्रेसिडेंट ट्रंप के. तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही. तमाम श्रोताओं और कॉलर्स का बहुत बहुत धन्यवाद. शरद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. And before we close the headlines once again, Prime Minister Narendra Modi says India is becoming the new factory of the world by transforming itself from a workforce to a world force. Domestic markets declined for the third straight week. Both Sensex and Nifty dropped nearly 3%, and GST collections jumped 9.1% to 1.84 lakh crore rupees in February this year. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra.